हेलो स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम कंटिन्यू कर रहे हैं वर्किंग कैपिटल एस्टिमेशन की एग्जामिनेशन प्रॉब्लम्स। तो उससे पहले आप अपने फार्मूला से रिवाइज कर सकते हैं। So let us start with problem number 23. So in this question, data given is JK Limited, a manufacturing company, provides the following information. सेल्स आपको मेंशन किए हैं, रॉ मटेरियल कंजम्पशन, लेबर पेड, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड इंक्लूडिंग कैपिटेशन ऑफ 360, एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग ओवरहेड से। फिर आपको पीरियड्स मेंशन किए हैं, रिसीवेबल्स 3 मंथ्स पीरियड, सप्लायर 3 मंथ्स क्रेडिट, लैगिंग पेमेंट को लेबर 1 मंथ, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स 1 मंथ इन एरियर, एडमिनिस्ट्रेशन 1 मंथ इन एडवांस, इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश गुड्स आर 3 मंथs, WIP is nil, and JK Limited sells goods at cost plus 33 1 by 3%. Cash balance safety margin is given, but we have to compute working capital on cash cost basis. कुछ मीन्स आपको सिर्फ कैश कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और कैश कॉस्ट ऑफ सेल कैलकुलेट करनी है, क्योंकि प्रॉफिट दिया है ऑन से कॉस्ट ऑफ गुड्स होगी, उसका कोई यूज नहीं है। सो फर्स्ट लेट अस प्रिपेयर वर्किंग नोट विच इज इनकम स्टेटमेंट। क्विक मीन्स जैसे ये एग्जिस्टिंग फर्म है, क्विक मीन्स ओपनिंग स्टॉक्स और क्लोजिंग स्टॉक्स सेम माने जाएंगे। देयर इज नो WIP। सो फर्स्ट वी हैव रॉ मटेरियल कंजम्पशन, अमाउंट्स हैं आपके रुपीज़ में, दिस इज ऑलरेडी गिवन रॉ मटेरियल कंजम्पशन। सो दिस इज गिवन टू बी 27 lakh। then labor is paid means wages, wages are 2160। so then you take manufacturing overheads, but we want only cash overheads, so exclude depreciation, total is 3240, उसमें से depreciation आप माइनस कीजिए 360। तो बैलेंस आ रहा है ओवरहेड से 3240 माइनस 360, 28,80,000। और कोई WIP नहीं है, तो इट मीन्स दिस इज अवर फैक्ट्री कॉस्ट as well as cost of production। 2880 plus 2160 plus 27 lakh, 77 lakh 40,000। Then you can add administration and selling overhead। So these are given to be 1080। So this will be our cash cost of sale। It means total cost of sale on cash basis। Cash basis means excluding depreciation। 7740 plus 1080, total is 88 lakh 20,000। So now we can determine working capital requirement। So let us prepare statement of working capital। Amounts are in rupees। So first we have current assets। So we have a stock of raw material and finished goods, both are 3 months। So first we have a stock of raw material। So this will be calculated on raw material consumption 27 lakh, period is given 3 months, so into 3 by 12। Then it is stock of finished goods, finished goods will be calculated on cost of production 77 lakh 40,000, and period is 3 months। So 27 lakh divided by 4,
6,75,000. Then finished goods is 7740 divided by 4, 19,35,000. Then we have debtors. This will be calculated on our cash cost of sale, 88,20,000. You can see what is our credit sale. So it is given receivables are allowed 3 months credit. और कैश सेल के बारे में देखिए आपको मेंशन नहीं किया है. इट मीन्स ऑल सेल्स आर ऑन क्रेडिट बेसिस. तो डेटर्स का पीरियड है 3 मंथ्स इंटू 3/12. So 88,20,000 divided by 4, 22,05,000. Then we have administration and selling overhead is paid 1 month in advance. This is prepaid. Administration and selling. Prepaid administration. So administration overhead is 1080. So 10,80,000 into 1 month in advance. So 1080 divided by 12, 90,000. Again cash balance is given to us. This is 3 lakhs which we have to maintain. Cash balance, that is 3 lakhs. So these are total current assets. Now we get total current assets. Amounts are in rupees. So this total is 675,000 plus 19,35,000 plus 22,05,000 plus 3,90,000. Total is 52,05,000. Then we have current liabilities. So first we have creditors. It will be based on consumption of material because this is equal to purchase. So creditors period is given 3 months credit, 27 lakh into 3/12. This is 675. Then we have lag in payment of labor 1 month. So outstanding wages. So total wages we have wages are given to us 2160 and the outstanding period is 1 month, 1/12. 2160 divided by 12. So 1,80,000. And manufacturing overhead are also paid 1 month in arrears. So outstanding manufacturing overhead. तो ये हम लेंगे एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन, क्योंकि डेप्रिसिएशन को है नॉन कैश आइटम. तो ये आपके आ रहे हैं 3240 माइनस 360. तो ओवरहेड आ रहे 28,80,000. पीरियड इज 1 मंथ. So divided by 12, 2,40,000. फिर आपको सेफ्टी मार्जिन रखना है 10% और कोई आपको आइटम मेंशन नहीं की है. So these are total current liabilities. So ये माइनस कीजिए. So this will be working capital. So working capital we are getting current assets minus total current liability 5205 minus 675 minus 180 minus 240. This is coming 41,10,000. Then you add safety margin. So this is at the rate of 10%. So 4,11,000. And this will be our total working capital requirement. Working capital required 45,21,000. Next we have problem number 24. So in this question data given is PQ Limited has started business in the year 2022 to 23 and had provided the under mentioned projected P&L. It means in current year कंपनी has started business और इन्होंने आपको इनकम स्टेटमेंट प्रेजेंट की है. प्रोजेक्टेड एस्टिमेटेड सेल्स आपको मेंशन किया है, लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स, जीपी लेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग एक्सपेंसेस.
देन नेट प्रॉफिट और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का डाटा दिया है. इट इंक्लूड्स मटेरियल कंजम्पशन, वेजेज एंड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन. दिस इज टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लेस स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स. 15% ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड नॉट येट सोल्ड. जो प्रोडक्शन है उसका 15% हमारा है क्लोजिंग स्टॉक. बैलेंस है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. क्योंकि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में आपकी डेप्रिसिएशन भी इंक्लूड है एज पर इनकम स्टेटमेंट. एंड देयर इज नो वर्क इन प्रोग्रेस एंड नो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश गुड्स. क्योंकि ये भी नया बिजनेस है आपका, स्टार्ट किया आपने, फर्स्ट ईयर है. देयर इज नो ओपनिंग स्टॉक. द कंपनी बिलीव्स इन कीपिंग मटेरियल इक्वल टू 3 months consumption in stock. All expenses will be paid 1 month in arrear. Suppliers extend 2 months credit. Sales will be 50% cash and the rest at 1 month credit. Company wishes to keep 50,000 in cash. You are required to prepare an estimate of requirement of working capital on a cash cost basis. Assume no taxes. तो आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कैलकुलेट करनी है कैश बेसिस पर. इसमें डेप्रिसिएशन को हमें एक्सक्लूड करना पड़ेगा. तो लेट अस प्रिपेयर अवर रिवाइज्ड इनकम स्टेटमेंट एज योर वर्किंग नोट. तो मेन है आपकी इनकम स्टेटमेंट, हाउ टू प्रिपेयर. अमाउंट्स हैं आपके रुपीज में. नया बिजनेस है, कोई ओपनिंग स्टॉक्स नहीं है. सो फर्स्ट वी हैव मटेरियल कंजम्पशन. देन वी हैव वेजेज एंड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस. वेजेज एंड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस. डेप्रिसिएशन को हम कंसीडर नहीं करेंगे. तो दिस इज 360 एंड 240 और इसमें कोई WIP नहीं है. तो इट मीन्स यही आपकी फैक्ट्री कॉस्ट बन जाएगी ऑन कैश बेसिस. सो कैश फैक्ट्री कॉस्ट और यही आपकी बन जाएगी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन कैश बेसिस. दिस इज कमिंग 6 लाख. तो हमने डेप्रिसिएशन को इग्नोर कर दिया. इसमें से अब आप लेस कीजिए स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स. लेस क्लोजिंग स्टॉक, ये आपका क्लोजिंग स्टॉक है फिनिश गुड्स का. नई फर्म है, ओपनिंग तो है नहीं. तो दिस इज गिवन 15% ऑफ प्रोडक्शन. तो ये प्रोडक्शन है तो उसका कर लीजिए आप 15%. देखिए 90,000. बैलेंस आ जाएगी आपकी कैश कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड COGS 510. अब डेटर्स हम कैलकुलेट करेंगे ऑन कैश कॉस्ट ऑफ सेल. तो उसमें ऐड कर लीजिए एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग एक्सपेंसेस. एड एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग एक्सपेंसेस. एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस हैं आपके 72,000 और सेलिंग के हैं आपके 60,000. तो दिस विल बी कैश कॉस्ट ऑफ सेल. तो ये था हमारा वर्किंग नोट, मेनली कैश कॉस्ट ऑफ सेल. This is 510 plus 72 plus 60, 642. Now we can calculate our working capital requirement. So let us prepare statement of working capital. And this is on a cash cost basis. Amounts हैं आपके रुपीज में. So first we have current assets. Stock of raw material. So मटेरियल का स्टॉक आपको मेंशन किया है. कंपनी बिलीव्स इन कीपिंग मटेरियल्स इक्वल टू 3 months कंजम्पशन. कंजम्पशन है आपकी 360 और 3 महीने का आपको रखना है स्टॉक 3/12. जिसकी कमिंग 90,000. एंड देयर इज नो WIP. एंड देन वी हैव finished goods. Stock of finished goods. Yes, we have already calculated 90,000, which is 15% of production. Then we calculated debtors. तो आपको मेंशन किया है 50% सेल्स आपकी कैश पर है. इसमें क्रेडिट सेल्स हैं 50%. कैश कॉस्ट ऑफ सेल है टोटल 642. इसका कीजिए आप 50%. यानी से बटे कि डेटर्स से पीरियड है आपका डेटर्स का. इट विल बी 1 month क्रेडिट इनटू 1/12. 26,750.
So these are our getters. Then we have any prepaid expense, आपको कुछ mention नहीं किया है. All expenses are in arrear. And cash balance we have to keep 50,000 in cash. So cash balance is given, which we have to keep 50,000. So this will be our total current assets. So now we get to total current assets. Amounts are in rupees. So totally 90 plus this is 180 plus 26 750 plus 50,000. Totally 256 750. Again less current liabilities. So first we have to calculate creditors. This will be calculated on purchase. Since this is a new firm, first year, so first to calculate purchase. Purchase will be equal to, कोई ओपनिंग स्टॉक नहीं है इसमें, रॉ मटेरियल कंजम्पशन प्लस कर लीजिए आप क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल. कंजम्पशन है आपकी 360 और क्लोजिंग स्टॉक आपने कैलकुलेट किया मटेरियल का 90,000 और कोई ओपनिंग नहीं है आपका, ओपनिंग इज 0. सो परचेज आर 4,50,000. ये आपको ध्यान रखना पड़ता है जब भी नई फर्म होती है. नाउ यू कैन कैलकुलेट क्रेडिटर्स ऑन परचेज 4,50,000 और इनका पीरियड आपको मेंशन किया है. तो इट इज गिवन है सप्लायर्स एक्सटेंड 2 months क्रेडिट. यू टेक 2 months. दिस इज 450 डिवाइडेड बाय 6, 75,000 इज अवर क्रेडिटर्स. फिर आपको मेंशन किया है इसमें ऑल एक्सपेंसिव विल बी पेड 1 month इन एरियर. इट मीन्स आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसिव. एक्सपेंसिव में देखिए सभी आ जाएंगे, वेजेज आ जाएंगी, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसिव, एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग एक्सपेंसिव. तो लेट अस राइट, लेट अस टेक टोटल एक्सपेंसिव हैं आपके. फर्स्ट ऑफ ऑल वी है वेजेज एंड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसिव, ये हैं 240 प्लस एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसिव आर 72,000, सेलिंग एक्सपेंसिव आर 60,000. इनको पर अप्लाई कीजिए आप पीरियड, दे आर 1 month into 1/12. This will be our outstanding expenses. So 2,40,000 plus 72 plus 60 divided by 12, 31,000. So total current liabilities are coming 106,000. ये माइनस कीजिए, बैलेंस is our working capital. Then you see any reserve we have to keep, there is no reserve, so this will be working capital requirement. So 256 750 minus 106,000. So working capital requirement is 1,50,750. तो दिस वाज ए गुड क्वेश्चन. तो इसमें मेन पॉइंट था कि जो फिनिश गुड्स का स्टॉक है दैट वाज बेस्ड ऑन प्रोडक्शन एंड दैट इज आल्सो कैश कॉस्ट बेसिस है. तो हमें इनकम स्टेटमेंट को रिवाइज करना पड़ा था एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन. तो इस लेक्चर में हमने डिस्कस की एग्जामिनेशन प्रॉब्लम्स ऑन वर्किंग कैपिटल एस्टिमेशन. थैंक यू.